eyes on the target and the gun in my vision. Bang! Taking my shots. Making melody in my heart. Come and sing with me. Come and sing. Yeah, they say the truth will set you free. Well, here I am. God only I ain't never कम्युनिकेशन की वजह से ही होता है, कोई ना कोई मोबाइल की यूज की वजह से ही होता है. I got stripes on me like a pair of stains out here. So my name is Shraddha Dayal. I am from Narmadapuram, Madhya Pradesh. And अभी खाना खाया है तुरंत, है ना? तो एनर्जाइजर करेंगे हम एक. सब लोग प्लीज थोड़ा सा ऐसे अपनी सीट पे खड़े होइए, राउंड बना लीजिएगा. अरे आई मीन जहाँ है वहाँ खड़े हो जाइए प्लीज. Sir, I will try. Okay. Okay. So मैं जैसा करूँगी हमें वैसा करना है, ठीक है? Okay. पहले हाथ पर ऐसे करना है, ठीक है? Making melody in my heart. Making melody in my heart. Come and sing with me. Come and sing with me. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Come and sing with me. Come and sing with me. ऐसे ही करना है हमें, ठीक है? ओके. हैंड्स अप. ठीक है? शोल्डर अप. एंड मेकिंग मेलोडी, ऐसे पैर चलने. मेकिंग मेलोडी इन माय हार्ट. मेकिंग मेलोडी इन माय हार्ट. कम एंड सिंग विद मी. हैंड्स अप. शोल्डर अप. एल्बो डाउन. Shoulder up and elbow down. Okay. Then making melody in my heart. Making melody in my heart. Come and sing with me. Come and sing with me. Hands up. Hands up. Shoulder up. Shoulder up. Hands down. Hands up. Knee bend. Even. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Come and sing with me. Come and sing with me. Hands up. Hands up. Shoulder up. Shoulder up. Hand down. Hands up. Knee bend. Even. And no, not yet. And look above. ठीक है? Making melody in my heart. Making melody in my heart. Come and sing with me. Come and sing with me. Hands up. Hands up. Hands up. ऐसे नहीं करना है. Okay. Hands up. Hands up. Shoulder up. Shoulder up. And knee bend. Even. ठीक है? Look above. Tongue out. Then हमें गाना है, okay? Tongue out. Sister Kesensia. Come and sing with me. Okay? Hands up. Shoulder up. Hand bend. Knee bend. Look above. Tongue out. And turn around. Come and sing with me. Okay, hands up. Okay, shoulder up. Hand bend. Knee bend. Turn above. Tongue out. And turn around. And sit your seat. So you have made us more changes that since we are in Goa, don't sing with me, drink with me. ओके, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मेरा नाम श्रद्धा दयाल है एंड होशंगाबाद से बिलोंग करती हूँ मैं. मध्य प्रदेश में आता है, भोपाल से सेटल हो, ठीक है? भोपाल से 65 किलोमीटर समथिंग दूर है. सो आज का मेरा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है, ऑलरेडी एक बार हो चुका है बट ठीक है, एक बार और. सो फर्स्ट
communication? What is effective communication? कोई भी. What is communication? Communicating something. Whatever I want to tell you, I am telling you. Okay. कोई और प्लीज पार्टिसिपेट करना है सबको. ओके, कोई और प्लीज टेक अ बाइट. ओके, इधर की तरफ से कोई. Communication is something that we give information to others. सॉरी. Something information to others. ओके, सो क्या विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी पॉसिबल है? विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी पॉसिबल है? नहीं ना, आई डोंट थिंक सो. विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी. हाँ सर, क्या पॉसिबल है? अच्छा, मेरे को लगा आप कुछ कह रहे हैं. ओके, ठीक है. तो विदाउट कम्युनिकेशन मुझे जहां तक लगता है कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना. अगर हमें अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, अगर सपोज जैसे अभी मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मुझे अपनी बात पहुंचानी है, तो मुझे कम्युनिकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा. अब चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन हो, रिटर्न हो, वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, कैसा भी हो, है ना. तो मुझे अपना मैसेज आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन की हेल्प लगेगी. ठीक है, अभी एक वीडियो देखेंगे. हम एक वीडियो में प्ले कर रही हूँ. ठीक है, देखिएगा सर प्लीज प्ले. Okay, social media factors. Okay, yes sir, please. Excess use of mobile social media. Okay, और आशीष? No, same. It closes human relations. Okay. Yes, Ashish, please. हैड भी नहीं था, लेकिन उनका कम्युनिकेशन बड़ा था. He was using too much of mobile app. Okay. मैं जहाँ समझ रही हूँ, ये जो हमने वीडियो देखा है, इसमें सब अपने अपने में लगे हुए हैं ना, साथ में बैठे हुए हैं, बट फिर भी बातचीत नहीं हो रही है. अच्छा, आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो हमारे रिश्ते छूट रहे हैं, कम्युनिकेशन कम हो रहा है, किसकी वजह से? कहीं ना कहीं एक ये मोबाइल ही है जिस वजह से हम बात नहीं करते हैं. फैमिली में रहते हैं बट फिर भी खाना पहले साथ में सब खाते थे, बैठते थे, लेकिन अभी क्या होता है, सब अपने मोबाइल में लगे हैं. आजकल बच्चे, स्पेशली पेरेंट्स ने बच्चों को बिल्कुल ऐसा करके रखा है कि वो तो मोबाइल के बिना खाना खाएगा नहीं. क्या ऐसा पॉसिबल है? हम भी बड़े हुए हैं, आई थिंक 90s के होंगे मोस्टली लोग यहाँ पे, है ना. तो ओके, 90s के होंगे काफी लोग. तो हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करते थे, बट फिर भी हम खाना खाते थे, फिर भी हम खेलते थे, कूदते थे, सब करते थे.
हर चीज में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में हमने चिड़चिड़ापन देखा है, जो जिद देखते हैं वो कहीं ना कहीं क्यों होता है? कहीं ना कहीं क्यों होता है? कम्युनिकेशन की वजह से ही होता है, कहीं ना कहीं मोबाइल के यूज की वजह से ही होता है ना? सर नेक्स्ट प्लीज। ये वीडियो का लिंक था। सर नेक्स्ट। ओके, सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वेज वी कम्युनिकेट? स्पोकन वर्ड, विजुअल इमेज, रिटन वर्ड, बॉडी लैंग्वेज। सो क्या आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो स्पोकन वर्ड? कोई इधर से? यस प्लीज आंसर। हाँ ओके, हाँ ये हमारा वही कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग तक मैं मेरा मैसेज पहुंचा रही हूँ, ठीक है। सेकंड है विजुअल इमेज। विजुअल इमेज उससे भी उसमें कोई भी वॉइस नहीं थी, पर उससे हमें समझ में आया कि एक्चुअली वो वीडियो में मैसेज क्या देना चाह रहा है ना? देन रिटन वर्ड लिखकर, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पर भी हम लोग बैठे हुए हैं, या फिर हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, कई बार ऐसा होता है मीटिंग चल रही है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं, तो हम कैसे वहाँ पे बात करेंगे? ऑब्वियसली हम यूज करेंगे फोन, मैसेज के द्वारा। अगर वहाँ पर हमने कॉल अटेंड करके बात करी तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे, और अगर हम एम्प्लॉय या बॉस सामने बैठा है तो जाहिर सी बात है 2 गालियां भी पड़ेगी। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ मीटिंग करने आए हो या फिर क्या फोन अटेंड करने आए हो? तो कई बार हमें जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे हमें मैसेज का, कॉल का या फिर विजुअल इमेज का सहारा लेना पड़े। डिपेंड भी करता है कि सिचुएशन क्या है ना? अगर हम लोग सपोज करिए यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, आप लोग जाकर किसी को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना होगा? कोई इंपॉर्टेंट कॉल आता है तो उठकर बाहर जाना होगा। हाँ, अगर क्लास नहीं है, लंच ब्रेक है, तो फिर हम यहाँ पर इजीली मोबाइल फोन यूज करके बात कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी उस टाइम पे इफेक्ट नहीं होगा। तो कई बार हमारा डिसीजन पे भी डिपेंड करता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं तो वो मैच कर रहा है या नहीं, है ना? नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में बताएगा प्लीज, किस तरह बोलना चाह रहा है? बॉडी लैंग्वेज से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस, जैसे जैसे कि खाना खाना, ऐसे सारा नहीं, इसको अगर इसका मैसेज पसंद नहीं आ रहा, बोल रहे हो नहीं काम। ओके, और कोई मैम? जस्टिस, like what we do action. यस, जैसे भी सर ने बोला था हमें कि गेस्चर देना है हमें, है ना? तो वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का एक सहारा है, ठीक है, जिससे कि हम बिना बोले एटलीस्ट सामने वाले को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, सामने वाले को हमें कुछ मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचा सकते हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं सबका अपनी अपनी जगह पे एक अलग अलग महत्व है। सर नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट सर। यस, ओके, सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या समझ में आ रहा है इससे आप लोगों को? आशीष क्या समझ में आ रहा है इससे? समझ में आ रहा है कि जो भी हम लोग सेंटर जो रहता है, जो फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रहा हूँ, एक सेंटर हो गया, आप जो सुन रहे हो तो आप रिसीवर हो जाए, और जो मीडियम है हम लोग इंग्लिश या हिंदी वो मीडियम हो गई। और कोई प्रतिभा? एक तो उसमें ये है कि कोई मैसेज सेंड कर रहा है, कम्युनिकेशन में दो तो होते ही है, एक सेंडर एक रिसीवर। मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं, हम सेंड करेंगे तो हम सेंडर हो गए, अगला पार्ट हो गया वो रिसीव करने वाला तो मैसेज रिसीवर हो गया। अभी वो मीडियम है कि हम किस मीडियम से कर रहे हैं, जो मैसेज दिया है हमारा उसका फीडबैक देना। ओके, अच्छा एक बैरियर क्या है बीच में, कोई बताएगा? Example language, for example, language. The second one didn't understand English or Hindi, then it will be difficult to receive. Sir. Connectivity also. Okay. Sir, please. See that the barrier from not today, sector may not have, I want to communicate something. Huh? But you know, the words I use, the way I communicate the matter, Okay. it should be understandable by the receiver.
I thought something, that one game who did that banana game. Banana. Yes, yes. We all concept, see what means, that means, not only it is something drink your taste, drink, not only alcohol. You are pouring water from a bottle to that, like that, so it is the part of the center also. Yes. Really, they should have done nicely, not really, and later we heard that. So, a center also should be very specific, very, understandable. Whatever you communicate, it should be, whether it is reached, we have to ascertain whether it is reached the receiver understood. Otherwise, we can ask. Then, in the training also we reconfirm now whether we understood. Also in the class, whether I made sense, are we clear? Okay. So we have, whenever I do have some doubts, I straight away ask, sir, I couldn't understand. So that should be, reciprocal. कहीं ना कहीं अभी हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ पर भी बैरियर लैंग्वेज को कह सकते हैं, जैसे मैं इंग्लिश में हिंदी में बात कर रही हूँ, यहाँ पर मोस्टली लोगों को इंग्लिश आता है या फिर आपका जो साउथ में जो भी लैंग्वेज होता है आपका तमिल कन्नड़ा वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैरियर हो सकता है। इसके अलावा बैरियर क्या हो सकता है, हम यहाँ पर हमारा मीटिंग चल रहा है, हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, यहाँ पर बाजू में जोर जोर से डीजे बज रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि हम अपनी बात सामने वाले को पहुंचाना तो चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से। तो आई थिंक दिस इज अ बैरियर। सर नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या समझ में आ रहा है इमेज से? ओके, फर्स्ट नॉइज, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट मीडियम, assumption, misconceptions, emotions, language difference, poor listening skills and distractions. ये images से आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है? ऋतुमा, नहीं पाते हैं। ओके, और कोई? यस। सामने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ भी होता है कि ऐसा कुछ हो जाता है, हो जाता है कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ सही से सुन नहीं पाते। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला कह तो सही रहा होता है, लेकिन हमें कई बार समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार क्या कहा आपने, दूसरी बार क्या कहा आपने समझने, तीसरी बार क्या कहा आपने, चौथी बार भी क्या कहा आपने, अब बोल नहीं सकते तो अच्छा ओके हाँ, या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, हमारे पास समझ देते हैं, ओ ओके। मेरे साथ अभी रिसेंटली कल हुआ ऐसा कि पता नहीं कोई तो मुझसे कुछ कह रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, हिंदी में ही बोल रहे थे जबकि वो, और मैंने कहा क्या क्या क्या, मैंने चौथी बार बोलूं कि सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, हाँ ओके। तो ये भी कई बार होता है। इसमें अच्छा प्रॉब्लम ये नहीं रहता कि सामने वाले की गलती है हमारी गलती, कई बार जो हमारा दिमाग है ना वो चीजें कैच नहीं कर पाता है, तो कभी यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम होता है। ओके, सो नॉइज, जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, बाजू में डीजे बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। इनएप्रोप्रिएट मीडियम हो गया, असम्पशन हो गया, इमोशन हो गया, इमोशंस की वजह से भी कई बार कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज यहाँ पर हमारी क्लास चल रही है और कुछ ऐसा होता है कि कोई पर्सन इमोशनल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर मुझसे बात करने में ना बहुत सोचना पड़ेगा कि इससे बात करे तो करे कैसे अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसके इमोशनल जोन में है, ठीक है। देन लैंग्वेज डिफरेंस भी अभी काफी यहाँ पर होता ही है, अभी भी हो ही रहा होगा। ओके, पुअर लिसनिंग स्किल्स, कई बार हम सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है, और इस वजह से भी कम्युनिकेट करने में हमें बहुत इश्यू होता है। अच्छा, इस वजह से कई बार हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं, ज्यादा मैं समझ पाती हूँ। डिस्ट्रैक्शंस, नेक्स्ट प्लीज। ओके, हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा प्लीज? हियरिंग, यस सिस्टर्स। हाँ, अच्छा ओके, यस सिस्टर ने ऑलरेडी मेंशन कर दी थी, यस। ये सिस्टर ने ऑलरेडी
Hearing is very casual, no? Sorry? Hearing is very casual. Yes. But here, some of us, no, Hmm. they just hear you, Hmm. but they're not listening. Hearing means you will be active, you will even get able to hear. But listening, you know, that you process it further, Hmm. and you know, in which way you are talking to us, that we take to our mind. अच्छा जैसे क्लास चल रही है, हम लोग सब सुन रहे हैं, अच्छे से सब सुन रहे हैं, सब अच्छे से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सर बोलते हैं लिसन केयरफुली, हम लोग समझ से एक्टिव हो जाते हैं कि अच्छा हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाला है ना। एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा उसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, मतलब जब हमें बोला जाता है लिसन केयरफुली, क्या बॉडी लैंग्वेज हमारा चेंज होता है, क्या होता है, तो बताइएगा प्लीज सिस्टर। यस, ऐसे से ऐसे हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, है ना। एकदम काम जो रहता है हमारे वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं सुनने के लिए कि हाँ अभी क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, ठीक है। सो हेयरिंग फिजिकल प्रोसेस, नेचुरल एंड पॉजिटिव लिसनिंग, फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रोसेस, एक्टिव लर्न प्रोसेस और स्किल। ओके सर, नेक्स्ट प्लीज। सो हाउ टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको बहुत डीपली मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत हो रहा है ना। ओके, सो इंप्रूव लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का इंप्रूवमेंट करना आई थिंक बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, कई बार मुझसे भी गलती हो जाता है कि मैं चीजों को बहुत गलत प्रोनाउंस करती हूँ, इस वजह से सामने वाला समझ नहीं पाता है और कई बार वो मुझे समझ भी लेता है। ओके, वर्क ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन, वर्क ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन। ओके, अपनी आवाज को ना हमें ज्यादा करना होता है, ना हमें तेज, ना हमें एकदम धीमा करना होता है कि सामने वाला इरिटेट भी हो जाए बहुत तेज आवाज से और बिल्कुल धीरे बोल रहे तो वो समझ ही नहीं पाए। एटलीस्ट एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमें अपने वॉइस को थोड़ा सा मेंटेन करके होना होता है, ठीक है। रीड मोर, लिसन मोर, अवॉइड रीडिंग और वॉचिंग और लिसनिंग अनवांटेड लिटरेचर, गॉसिप, मीडिया प्रेजेंटेशन etc. इंटरेक्ट विद क्वालिटेटिव पीपल, improve on your topic of discussion, practice meditation and good thoughts। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर हम जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव होगी। जैसे कि इंग्लिश तो दूर की बात है, मेरे को हिंदी में भी कई बार वोकैबुलरी का इशू होता है, मुझे हिंदी में भी मेरे वर्ड्स रखने के लिए मुझे नहीं मिल पाते, ठीक है। एंड इसके अलावा थिंक एंड स्पीक, जाहिर सी बात है बोलने से पहले सोचना होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे किसी को भी कुछ भी कह दूं तो जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता कि वो उस चीज को कैसे ले रहा है, पर इस वजह से कई बार सामने वाला बहुत इमोशनल डैमेज भी हो जाता है क्योंकि हम नहीं जानते ना कि कौन सा इंसान किस बात को किस वे में ले रहा है। हो सकता है जो बात हमारे लिए हंसी मजाक की हो बट वो उसके लिए नहीं हो सकती है ना। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देना होता है। एंड डोंट स्पीक टू फास्ट, कई लोग बोलते हैं इतना जल्दी बोलते हैं समझ में ही नहीं आता कि बोला क्या उन्होंने, और कई लोग इतना धीरे बोलते हैं कि वो भी नहीं समझ में आता। तो ये भी चीज हमें मेंटेन करना होता है। यूज सिंपल वोकैबुलरी जिसे लोग आसानी से समझ सकें। डोंट स्पीक ओनली टू इम्प्रेस समवन। अच्छा ये भी होता है, कई लोग है ना सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं होता है, पर हाँ सामने वाले को इम्प्रेस करना है तो हम क्या बोले, कुछ तो बोले। तो इस चीज का भी ध्यान देना होता है कि कुछ भी ना बोलने से बेटर है कि थोड़ा सा सोच समझ के बोले। लुक प्रेजेंटेबल एंड कॉन्फिडेंट, भले आपको कुछ नहीं पता है, भले आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ना कॉन्फिडेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ नहीं कर सकते हो। कई बार मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे साथ ये चीज होता है कि मेरे को पता है मैं सही हूँ, लेकिन मैं वहां पे ना मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हूँ। सामने वाला अगर बोल रहा है ना कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं ऐसी, मैं बिलीव कर लेती हूँ कि हाँ हो सकता है होगी। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी बात पे अडिग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर नेक्स्ट प्लीज। ओके, एक एक्टिविटी करेंगे हम, खड़े हो जाइए सब लोग। ओके, सो चेयर्स थोड़ा सा पीछे कर दे, पीछे कर दे, बस बस बस। पीछे, ठीक है।
हो गया सेटल? सेटल? ओके, मैं बोलूंगी रन, सिट, स्टैंड, जंप, जो भी बोलूंगी, ठीक है। लेकिन आपको एक्टिविटी कब करना है? जब मैं बोलूंगी आई साइड, समझ में आया? जंप, रन, सिट, स्टैंड, जो भी मैं बोलूंगी, वॉक, आपको एक्टिविटी कब करना होगा? जब मैं बोलूंगी आई साइड। समझ में आया कैसा बोल रही हूँ? हाँ, अगर मैं बोलूंगी आई साइड तब आपको वो करना है और उसी स्पीड से करना है, ठीक है? ओके, आई साइड वॉक, आई साइड वॉक फास्ट, बहुत बड़ा स्पेस है। स्टॉप, व्हाइल स्टॉप, व्हाइल स्टॉप, आई साइड स्टॉप, आई साइड रन, आई साइड रन स्लोली, walk, I said walk. Run fast. Run fast. I said run fast. Sit. I said sit. Stand up. Stand up. Okay, I said stand up. I said stand up. I said sit. Sit on your place. I said sit on your place. Okay, तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी। मैंने बताया एक्टिविटी कैसी लगी है? बढ़िया थी? कूल थी? ओके। क्या मैसेज मिला इस एक्टिविटी से? Okay, it's related to communication ना? Active listening. Okay, और कोई? ये सिस्टर कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज? नहीं? Okay. Active listening और बस presence of mind और focus और सर, what did you learn from this activity? Oh, I can learn from it. Yeah. See, attention one, then listen carefully, Yeah. listen to the message carefully, act accordingly. Okay, so this is the activity of communication, so improving body language. Keep appropriate distance. ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सर से, तो जाहिर सी बात है इतना क्लोज हो तो बात करना वो सही है, वो ऑफिशियली नहीं लगेगा ना। तो जाहिर सी बात है किसी से भी बात करें, स्पेशली अगर किसी लेडी से बात करें तो कई लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा से क्लोज जाकर बात करने की। एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखेंगे तो आपकी इमेज बहुत अलग बनेगी, और अगर आप बहुत क्लोज जाके बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इमेज कैसे बनेगी वो जानते ही हैं, है ना? टच ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट। कई लोगों की आदत होती है वो ऐसे टच छू कर बात करना, है ना? जो कि जरूरी नहीं होता है ना? बिल्कुल ऐसे छू कर बात करना, बिल्कुल ऐसे क्लोज जाकर बात, जो कि जरूरी नहीं होता है। पर अंडरस्टैंड? टच व्हेन ओनली एप्रोप्रिएट, सॉरी यस, टच ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट, है ना? बिना मतलब बात टच करके बात करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर हम किसी को कंसोल कर रहे हैं, अगर किसी को सहानुभूति दे रहे हैं तो उस टच की बात अलग होती है, बट अननेसेसरी टच करके बात करना आई डोंट थिंक ये बहुत सही होता है। टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। आप कैसे लग रहे हो, आपको बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस चीज पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है ना? आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को जैसे रिप्रेजेंट करोगे जाहिर सी बात है आपका इमेज वैसे ही बनेगा। क्योंकि फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट लोग हमें कैसे जज करते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हम खड़े कैसे हो रहे हैं, हम बात कैसे कर, बात तो फिर बात की बात है, लेकिन हम खड़े कैसे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है ना? हम चल कैसे रहे हैं,
ये सारी चीजें कोई बोलेगा नहीं आपको, बट कोई भी नोटिस करता है। जब भी आप किसी भी रूम में एंटर करते हो, सबसे पहले इंसान यही देखता है कि आप बोल कैसे रहो। जाहिर सी बात है, वो आपका लुक देखता ना पहले। तो टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस, बी अवेयर पीपल में गिव फॉल्स क्यूज, मेंटेन आई कांटेक्ट, स्माइल जनरली। सो जाहिर सी बात है, अगर किसी से भी हम बात करें तो फेस पे मुझे लगता है एक छोटी सी स्माइल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे छोटी सी स्माइल होना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई अगर पूछ रहा है हाउ आर यू, फाइन, तो क्या बोलेगा, ये इसको तो देखो कितना एटीट्यूड है इसमें, है ना। हाँ भैया, आपको किस बात का गुस्सा है? तो जाहिर सी बात है, किसी से भी अगर बात करें मिले तो फेस पे एक छोटी सी स्माइल रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा एक अलग इमेज बनेगा। मेंटेन आई कांटेक्ट, जाहिर सी बात है अगर हम खासकर इंटरव्यू में अगर हम बैठे हुए हैं तो ये शो करता है कि हम में कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप किसी से आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो, वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। अगर आप इधर उधर देख के बात करोगे, ऐसे ऐसे करके बात करोगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला ये सोचेगा कि इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। सर नेक्स्ट प्लीज। ओके, सक्सेस फॉर यू in the new global and diverse workplace required excellent communication skills. आप आपके घर में हो, आप आपके वर्क प्लेस पर हो, कहीं पर भी आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है आपके ग्रोथ के ऊपर, आपके रिलेशंस के ऊपर। जाहिर सी बात है, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मेरे घर में एक बच्ची है, उसको मैंने सबके सामने, आजकल मेरे बच्चों का भी बड़ा ईगो होता है या फिर उनकी भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ करता था, सबके सामने पड़ जाती थी। ठीक है, तो घर में बच्ची है, उसको मैंने डांट दिया था, मेरी भतीजी लगती है, उसको मैंने डांट दिया था, सबके सामने डांटा था रोड पे। ठीक है, वो मुझसे गुस्सा होकर चली गई, मेरे सामने कुछ नहीं बोला उसने, घर में जाकर वो रो रही थी कि मम्मी बुआ ने मुझे सबके सामने डांट दिया, सबके सामने मुझे ऐसा बोला। मुझे उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे गलत थी। बाद में जब मैंने ये सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज सच है, मुझे सबके सामने से नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, अगर मुझे कुछ बोलना है, मुझे उससे कोई भी शिकायत या उसे डांटना था, तो मुझे उसे अकेले में आके बोलना चाहिए था, जिससे कि उसकी भी इंसल्ट नहीं होती चार लोगों में। तो अगर मैं शायद वहां पर इस चीज का ध्यान देती तो उससे जो मेरा रिलेशन है जो थोड़ा सा खराब हुआ वो नहीं होता। वो उसका जो इतना टाइम रोने में गया या फिर वो उसे बुरा फील हुआ, तो वो चीज नहीं होता। तो खैर ये तो छोटी सी बच्ची की बात है, लेकिन हम लोग आपस में भी ऐसा करते हैं, हम जाने अनजाने में हमारे कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोगों को हर्ट करते हैं, क्योंकि प्लीज इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ मेरा सेकंड होता है। Sir, you have good